Dear students, we are back here with the second part of the lesson, right? In the first part, I shared some of the serious reservations and the comments made by the celebrities regarding interviews. I hope that you remember most part of the lesson. I had given you a few assessment questions, and I understand that sitting back at home, you jotted them down or wrote them in your notebooks, and you are ready to respond to my questions. Are you ready? Great, that's nice. Okay, wait, we will do that part. I will go for your assessment after some time. Fine? Right now, let's do the second part of this very lesson. Is that okay? Great, that's nice. But remember, another very important point. In this lesson, I will be again asking you a few questions. Yeah, of course. And I am just keeping them here. After finishing out my lesson, you are supposed to respond to those questions again. लेसन ख़त्म होने के बाद उन क्वेश्चंस का जवाब देना पड़ेगा, ठीक है ना? इधर ही लिख कर रखता हूँ, लेसन पे फोकस कीजिए ताकि लास्ट में इन क्वेश्चंस के आप आंसर दे सको, ठीक है? जो सेकंड पार्ट है ना, पेज नंबर ऑफ 72 और 73 पे जाना पड़ेगा आपको फ्लेमिंगो के, ओके? हाँ, ये है एक इंटरव्यू जिसमें आपका मुकुंद पद्मनाभन, राइट, ही इज़ द इंटरव्यूअर, और वो एक इंटरव्यू लेते हैं किसका? Umberto Eco. Let's know about Umberto Eco in the lesson, but prior to that, before that, एक दो questions आपके लिए रखें. Oh fine, ठीक है, that's good. बहुत अच्छा response मैं समझ रहा हूँ, I can understand. Okay, suppose आप ऐसा कीजिए, how does Eco find the time to write so much? ये एक question रहेगा. How does Eco find the time to write so much? Okay, yes, one. Number two, what are interstices? ठीक है? Sometimes they call it interstices, right? Some of the dictionaries. But if you go to RP and if you check it from, for example, OLD, Advanced Learners Dictionary, you will see this kind of transcription that I have given it here, right? Fine. So both of the pronunciations in your cell phones, you will find some of the applications telling you it is interstices, right? No issues in that. What are interstices? How Umberto Eco takes benefit of interstices, also interstices, right? So there's two things. Okay, name the most important work of Umberto Eco. तो इन्होंने सबसे मशहूर एक काम किया है, record breaking thing, है ना? At the end of the lesson मुझे बोलना पड़ेगा. So ये आपके लिए मैं यहाँ पे 3 questions, I repeat, आपके लिए रखे हैं, है ना? क्लास खत्म होने के बाद, after completing of this lesson, you have to respond these questions. Please write them in your notebooks. अपने notebooks में इसको mention कीजिएगा. Number 1, how does Eco find the time to write so much? You will come to know that Umberto Eco has written a lot, है ना? In different fields, we'll know about that. तो आप ऐसा करेंगे, क्या है उसको कैसे time मिलता है? We'll be talking about that. You will know about that during the course of lesson, and note that, है ना? Later on come to respond to this question. Then another one, what are interstices or interstices, right? क्या होते हैं interstices?
is a concept, an idea given by Umberto Eco. So, we will come to know about that in through this very lesson. So, you need to write few words about that, and then how Eco takes benefit of interstices या interstices, right? तो इस का benefit क्या मिला उनको, how he became maybe what Umberto Eco is today, है ना? तो वैसे he is dead, I will talk about that also. So, the benefits from this very concept that he shares with us. And the last one, name the most important work, है ना? उनका सबसे famous मशहूर काम Umberto Eco का, that almost made him the celebrity in the world. उसी चीज़ ने उसको celebrity भी बनाया, है ना? Okay. So now, before we go to the lesson itself, I think we must have some brief introduction about this part of the lesson, that is an interview, and this interview is between, yes, a famous editor of one of the leading newspapers of India, and the name of the newspaper is The Hindu. अभी इंटरनेट पर चेक कर सकते हैं गूगल पे द हिंदू, एंड यू कैन रीड टुडेज न्यूज़, है ना? कोई भी न्यूज़ पढ़ सकते हैं. तो उसके एडिटर आज नहीं है, ये सम अदर थिंग, बट द टाइम ही रोड दिस, या उसने जब इंटरव्यू दी तब वो थे एडिटर. मोस्ट प्रोबेबली यू विल फाइंड सम अदर पर्सन टुडे. सो तब ये थे मुकुंद पद्मनाभन. हिंदू, द हिंदू डेली न्यूज़ पेपर, लीडिंग डेली ऑफ दिस कंट्री, तो उसके वो एडिटर थे. तो उनका ये इंटरव्यू, तो उन्होंने किसका लिया था? हाँ, इट वॉज टेकन, and the man was Umberto Eco, a professor in the University of Bologna. बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है. लेट मी पुट इट हियर, राइट? आपके लिए लिखता हूँ यहाँ पे. यस, ये है BOLOGNA, but the pronunciation is Bologna, so G is silent here. Okay, so it is in Italy. तो इटली के एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे हैं Umberto Eco. तो दिस इंटरव्यूज, he is the interviewee, right, and the interviewer is मुकुंद पद्मनाभन, जो हमारे न्यूज़पेपर, मशहूर पेपर द हिंदू के एडिटर रहे हैं. ओके, सो दिस द फर्स्ट थिंग. तो Umberto Eco का जो लाइफ स्पैन चला है, फॉर योर इंफॉर्मेशन, he was born in 1932 or 2016 was the day when he left. Okay, anyway, so I have written this thing here, formidable, a word. तो Eco की बड़ी ज़बरदस्त, this is how he is recognized. He was having a formidable reputation. Now उस reputation पे inspiring, जैसे ही ना एक लोगों को डर लगे इस आदमी के बारे में, कुछ इसको नेगेटिव ट्रेट इसका बोले तो डर लगता है. इतनी हाई उसकी इमेज इतनी अप हुई होती है कि उसको हम फॉर्मिडेबल कहते हैं, राइट? सो ही वाज हैविंग दैट काइंड ऑफ रेपुटेशन एज अ स्कॉलर, एंड particularly in one thing. And what is that? Yes, remember it. Right? Semiotics. He was a professor of semiotics. You will come to know. See, most of the students, agar aap mein se, if you are interested to go for higher education in English, then most probably in the area, in the science, in the study of linguistics, you will come to know about this, what is semiotics. And he was professor of semiotics in Bologna, right? It is study of signs, where is the concept of signifier. Yeah, if you Google it, you will see that it was Ferdinand de Saussure, a Switzerland linguist, who actually gave this concept, linguistic concept to the world. So anyway, we will not go to that part. Just a brief reference of this thing, because our today's celebrity, whom we are going to interview, he is from this very field. He is the professor of semiotics. That's why I thought I must tell you. Otherwise, at class 12th, you don't need to go deeper to this very topic. Okay, fine. So, Eco is believed to have philosophical bent of mind, right? He was having command over literature, literary interpretations, and Middle Ages history.
medieval history, right? And he was also very much fond of aesthetics. Okay. Now, there is very interesting thing about this person that the world came to know him as a novelist. And for that, he doesn't feel happy. वो उसको अच्छा नहीं लगता है कि मुझे एज नॉवलिस्ट दुनिया क्यों जानती है, क्योंकि मैं एक एकेडमिक था. आई वाज सच फॉर्मिडेबल रेपुटेशन मेरी इसमें थी एज अ प्रोफेसर ऑफ सेमियोटिक्स. लोग मुझे एज क्या कहते हैं इसको नॉवलिस्ट क्यों समझते हैं. एंड दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नो एट द एज ऑफ 50 साल के बाद ही स्टार्टेड राइटिंग नॉवेल्स. ओके, सो this is something more about this, and he has also written about, contributed to literary fiction, academic texts, essays, children's books, newspaper articles. ठीक है ना. And now I will, most probably this will give you answer to one of your questions that I have put on blackboard, है ना. This is just an introduction I am giving you. So he has written a book, a novel. And the name of the novel was The Name of the Rose. And this is the book that sold 10 million copies worldwide. Yes. And this was the book that brought Umberto Eco to the realms of the horizon. This is why we know Umberto Eco today, such a great person, only because of this novel. Now you will see some interesting things. आपको बड़ी दिलचस्प बातें इस नॉवल के बारे में, इसकी सक्सेस के बारे में you will come to know. बड़ा दिलचस्प है. तो let us see how he is being questioned and how he responds to the questions, right? तो semiotics के बारे में I just told you कि he is professor of semiotics, and वो एक पिक्चर, किसी भी वर्ड की आप पिक्चर लें तो उसको हम सिग्निफाइड कहते हैं. और पिक्चर के लिए जो फॉर्म, जो हम लेटर्स लिखते हैं ना, फॉर एग्जांपल ट्री, TREE, डॉग, DOG को हम सिग्निफायर कहते हैं, एंड जो डॉग की पिक्चर है उसको सिग्निफाइड, दोनों को मिलाकर हम साइन कहते हैं. सो दिस इज द स्टडी ऑफ साइंस. इसी को सेमियोटिक्स बोलते हैं. तो स्कैफोल्डिंग में, बिफोर वी गो टू द मेजर टेरिटरी ऑफ आवर बिजनेस टुडे, let us see some of the important words you might come across. पहले लेसन में भी, I hope you remember, मैंने आपको बताया था कि why we need to focus on this vocabulary. It's altogether different from dictionary vocabulary. Why? Because if you go to find a word in dictionary, what will you find there? Sometimes you will see a word written and maybe some 8, 9, 10, 12, 13, 15, up to 20 entries of meanings. It is flooded with meanings. Now, a student of your stature in class 12th or 11th, wherever you are, you will feel confused. Which meaning will I take? है ना? So that's why you need to understand the context of your story, of your poem, of your prose piece, and we select such words and give it at the end of the text, or maybe in the beginning of the text, or somewhere in the middle of the text. And there we call it glossary. Why we call it glossary? Because we give there only that meaning of the word which pertains to that particular piece of literature, whatever it is. You got my point? So इसलिए यहाँ पे ये selected meaning of these words हैं. If you go to the dictionary, most probably you will find a lot of other meanings of the same word. But we are here related to these meanings, and because these meanings are the understanding of these words will surely, yaqinan, this will help you to understand the context of the interview. Okay, so let us see. The first word is formidable. I told you, है ना? It is formidable. Okay, it means inspiring fear and respect, being capable of some great thing. Okay, so powerful, intense. के साथ कोई बंदा जब, है ना, उसकी बात करने का स्टाइल, उसका चलना वो बड़ा ही ना असरदार लगता है, तो इंग्लिश में ऐसी रेपुटेशन को कहते हैं फॉर्मिडेबल. ओके, सो देन वी गो टू मेडिईवल. मेडिईवल मीन्स मिडल एजेस, है ना, वस्ती दौर जो रहा है उसकी हिस्ट्री वगैरह वगैरह उसके बारे में. देन एस्थेटिक, है ना, एस्थेटिक्स वी टॉक मोर इन लिटरेचर अबाउट दिस. इट्स अ ब्रांच ऑफ फिलोसॉफी. तो that deals with the nature of appreciation of beauty. Exactly. तो उसके बाद another word staggering. It's astonishing.
बहुत ही hair, when you feel surprised about things, है ना, तो you say it is staggering, है ना. तो इसी तरह philosophical, related to a person who is devoted to the nature of knowledge, reality, existence, है ना, इन चीज़ों के बारे में जब फोकस हो. तो इसी तरह ethical, related to moral principles. Eliminate means remove. Fist, a person's hand when the fingers are bent in towards the palm and held there tightly, है ना. Interstices, I said interstices are gaps, space. And then there is another important word that you will find in this very interview, that's elevator. Yes, a lift, है ना, that takes you up from ground floor, from first floor somewhere. Okay, so these were some of the words. So I hope it's a kind of scaffolding, है ना, आपकी help के लिए, support के लिए. If you understand these words, definitely it's going to help you, है ना, ये आपकी बहुत मदद करेगा to understand the interview. I suppose let me go through the interview, है ना. Let us go and read, rather try to understand what are the questions, what are the responses. Okay, okay, fine, let me read it out for you, and this is how it goes. Okay, so our interviewer for this occasion is Mukund Padmanabhan, and who is being interviewed? Interviewee, yeah, it is Umberto Eco. And I told you about Umberto Eco, the persona, the formidable reputation that he is having. So he is on our sets today. Let's try to go for this interview. And remember, I'll tell you a few things here before we go to the depths of this very interview. What you need to understand, what you need to think, what are the important points that as an interviewer we should keep in mind, right? Very important, and that's why I want you to remember all these points, है ना. So for example, there are 4 techniques of an interview. There are 4 techniques, and you will see all these 4 techniques have been used, है ना, by Mukund Padmanabhan. Okay, I will be rubbing these words now. Oh yes, we did them. So yes, now he says, for example, he uses words like flagging. No, he doesn't use, sorry, I am telling you, flagging, we use this technique, this is one of the techniques, flagging. Okay, then we have bridging. Okay, yes, then we have blocking. Fine, flagging, bridging, blocking, yes, and then we have hooking. Hooking is the first thing. Okay, so these are the 4 important techniques an interviewer must possess. What are these? Hooking, flagging, yes, blocking, 3, and then bridging. Hooking, bridging, blocking, yes, and then yes, it is hooking, it is bridging, it is blocking, exactly, and it is flagging. Yes, of course. So what is hooking? Hooking में क्या होता है? We said in the first lesson कि बहुत सारे problems होते हैं interviewees को जब वो interview देते हैं. तो if they know these techniques of interviewers, they will feel comfortable. मसलन यही पहली वाली I said hooking, कि आप ऐसे बात करें when you are asked a question. For example, leading the interviewer in the direction you want to go. आप ऐसे स्टार्ट करें किसी क्वेश्चन का आंसर कि आप उसमें इतना ऑप्शन रखें कि इंटरव्यूअर आपको मजबूर हो जाए उसी रिलेटेड जो आप कहना चाहते हैं नेक्स्ट, उसी रिलेटेड वो नेक्स्ट क्वेश्चन करें. दैट्स कॉल्ड हुकिंग, है ना. एज ए genre, sorry, interview as a genre, you students must know this technique because after all you are learning language, and to be good at language you should know this skill, how to interview and practice whatever I am telling you. Practice these things with your friends, your sister, your brother, father, whosoever is there. Practice interviewing each other. So hooking will be the first thing. When you are answering questions, remember that how you interview. You got my point?
Excellent. Yes. So leading the interviewer, I said कि whatever you want to say, ऐसे ही कुछ आप response कीजिए कि he will be forced to ask you follow-up question regarding what you want to elaborate. Okay. Then another very important thing, flagging. If I go to flagging, yes, hooking के बाद flagging. What is flagging? Flagging को आप बोले when you are responding to a question. Say for example, tell the interviewer that the information you are about to share is of huge value and importance. For example, you are talking about interviews. To say, I'm just telling you some brief things, but there is much more to come. So you are flagging whatever you are going to say next. So that means your interviewer will ask you a question. What is that much more? है ना? So again, you are just controlling the stage there, and you are controlling the interviewer also. That's flagging if you know this technique. For example, then blocking. Sometimes you feel an uncomfortable question is asked to you, or an interviewer. Interviewer asks an uncomfortable question to an interviewee. So the best thing is that it comes like a bullet or a ball towards you. Come forward and block it. That means comfortably, coolly and calmly answer that. Whatever you want to say, respond to that question. And then easily bridge that. Give some other alternative. Say, okay, that was a problem with the system last time, but we are coming with a great new system now, and that is this. Give some other name and start speaking about that. So that means you have blocked that attack that was being coming to your way. You blocked it and you bridged it, and blocking and bridging came together. Uncomfortable question is to be blocked. That means a calm response, cool response, है ना? And then bridge it and say yes. There was some the server was down today, and yes, we are now improving on it, and this is what we are doing. It says start speaking something else and flag it again, so that the interviewer comes back to your control. So these are some of the techniques that we see in interviews. Right now, let's go to this interview, and this is also your task. I am assigning you this task. And what is the task? See the questions asked by Mukund Padmanabhan, and see the responses of Umberto Eco, and see how flagging, bridging, blocking, right? And all these techniques are used very, very successfully by Umberto Eco. Okay, fine. Now the question goes like, now the interview starts like this. This is Mukund. He starts like this. He begins the question like this. Umberto is sitting. Okay, Umberto is sitting here. And suppose I am Mukund Padmanabhan and I am asking the question to Umberto Eco. He is there. Okay, I will take the part of Umberto Eco also. मैं Umberto Eco भी बनूंगा, मैं Mukund भी खुद बनूंगा. Right? पहले मैं Mukund की तरह. Let me ask a question. The English novelist and academic David Lodge once remarked, I can't understand how one man can do all the things Eco, he was talking about you, Eco does. कैसे कर सकते हैं इतनी सारी चीजें जैसे Eco आप कर रहे हो? Now Umberto Eco, he responds to this question. Maybe I give the impression of doing many things, but in the end I am convinced I am always doing the same thing. Mukund, which is, यानी कौन सी चीज आप बार बार कर रहे हो? Umberto Eco, now that's more difficult to explain. I have some philosophical interests and I pursue them through my academic work and my novels. Even my books for children are about non-violence and peace. You see, the same bunch of ethical, philosophical interests. तो ये response है Umberto Eco का कि ये चीज़ें मैं करता हूँ. And then he adds, कहता है, then I have a secret. Do you know what will happen if we eliminate the empty spaces from the universe?
eliminate the empty spaces in all the atoms, the universe will become as big as my fist. Similarly, we have a lot of empty spaces in our lives. हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी खाली जगहें हैं, इसी तरह जिस तरह यूनिवर्स में है कि इनको अगर हम ब्लॉक करें तो बहुत सारी जगह यूनिवर्स आपके हाथ में आएगी, जो अगर एम्प्टी स्पेस को कम किया जाए तो इसी तरह हमारी लाइफ में बहुत सारी एम्प्टी स्पेसेस हैं. दिस वाज द रिस्पॉन्स एंड आई कॉल देम इंटरस्टिसीज. इन्हीं एम्प्टी स्पेसेस को मैं इंटरस्टिसीज या इंटरस्टाइसिस कहता हूं. और इन इंटरस्टिसीज में मैं क्या करता हूं, से यू आर कमिंग, फॉर एग्जाम्पल पहले अम्बर्टो को एक एग्जाम्पल देते हैं कि वो समझाते हैं कि इंटरस्टिसीज होती क्या है. वो मुकुट से कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल यू आर कमिंग ओवर टू माई प्लेस. आप मेरे घर आ रहे हैं, फाइन, ओके. आई एम राइटिंग फॉर यू, आई एम वेटिंग फॉर यू. मैं आपका घर में इंतजार कर रहा हूं, ओके. दिस इज एन इंटरस्टिसीज. ये एक इंटरस्टिसीज है, ये एक खाली जगह है, ये एक स्पेस है, यहां पर थोड़ा सा स्कोप है, जगह है, ओके. एन एम्प्टी स्पेस. आई वर्क इन एम्प्टी स्पेसेस while waiting for your elevator to come up from the first to the third floor. I have already written an article. And he laughs, says कि ये देखिए, आप एलिवेटर से नीचे से ऊपर थर्ड फ्लोर में आए, मेरे पास खाली जगह थी, मैंने तब तक एक आर्टिकल लिखा. एंड देन अम्बर्टो laughs. ये देखा आपने, इस तरह इन्हीं खाली खाली जगहों को यूज करते हुए मैं आर्टिकल्स लिखता हूं. एंड देन मुकुट responds with another question. Not everyone can do that, of course. Your non-fictional writing, your scholarly work has a certain playful and personal quality about it. It's a marked departure from a regular academic style, which is invariably depersonalized and often ड्राई एंड बोरिंग. आम जो राइटिंग स्टाइल्स होते हैं वगैरह वो डीपर्सनलाइज्ड होते हैं, बोरिंग होते हैं. मगर अम्बर्टो आपका तो बड़ा डिफरेंट स्टाइल है, विच इज इन सॉरी, हैव यू कॉन्शियसली अडॉप्टेड एन इनफॉर्मल अप्रोच. आपका अम्बर्टो साहब लिखने का बड़ा स्टाइल ही एक इनफॉर्मल है. क्या आपने जानबूझकर ऐसा किया है, और इज इट समथिंग दैट जस्ट कैम नेचुरली टू यू, कि ये नेचुरली आप में था? वॉज इट नेचुरल कि आपने ये इम्पर्सनल नॉन फॉर्मल स्टाइल में लिखना शुरू किया? क्या ये नेचुरल था कि आपने कॉन्शियसली ये आप कर रहे हो? अम्बर्टो को अगेन, क्योंकि ही इज हैविंग द हैबिट ऑफ क्रिएटिंग स्टोरीज, तो उन्होंने इस क्वेश्चन को ऐसे रिस्पॉन्स किया. When I presented my first doctoral dissertation in Italy, one of the professors said, scholars learn a lot of a certain subject. बहुत सीखते हैं स्कॉलर्स किसी खास सब्जेक्ट पे. देन दे मेक ए लॉट ऑफ फॉल्स हाइपोथेसिस. तो फिर वो हाइपोथेसिस एक गेसिंग उस पर करते हैं कि ये चीज़ इसमें चलेगी. देन दे करेक्ट देम. तो फिर उस हाइपोथेसिस कहीं कहीं गलती होती है तो उसको करेक्ट करते हैं. एंड एट द एंड दे पुट द कंक्लूजन्स, और लास्ट में उसको कंक्लूजन में लाते हैं. You, on the contrary, told the story of your research. यानी अम्बर्टो एको कहते हैं कि जब मैंने अपनी डॉक्टरेट की रिसर्च पेपर को मैंने अपने प्रोफेसर को दिया था, तो उन्होंने मुझे कहा था कि नॉर्मल वे में लोग क्या करते हैं, रिसर्च स्कॉलर्स क्या करते हैं कि वो लिखते हैं, फिर एक हाइपोथेसिस देते हैं, और हाइपोथेसिस को फिर करेक्ट करते हैं, फिर एंड में सबमिट करने से पहले उसका कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं. तो बड़ा फॉर्मल एंड एक साइंटिफिक वे होता है. तो उसके बाद वो सबमिट करते हैं. वो प्रोफेसर फिर अम्बर्टो से कहते हैं, लेकिन आप क्या करते हो? यू ऑन द कंट्ररी टोल्ड द स्टोरी ऑफ योर रिसर्च. आपने तो इस रिसर्च में अपनी कहानी शुरू कर दी. आप कहानी लिख रहे हो. पहले मैंने ये किया, कहानी के डिफरेंट पार्ट्स नरेट कर रहे हो आप चीज़ों को, इवन इंक्लूडिंग योर ट्रायल्स एंड एरर्स. आप सारा कुछ लिख रहे हो कि मैंने पहले ये कोशिश की, यहाँ गलती हुई, फिर ये किया, फिर वो किया. ये भी आपने तो डिसर्टेशन में लिख दिया है. एट द सेम टाइम, लेकिन अम्बर्टो कहते हैं, एट द सेम टाइम ही रिकॉग्नाइज्ड आई वाज राइट एंड वेंट ऑन टू पब्लिश माय डिसर्टेशन एज अ बुक, व्हिच मेंट ही अप्रिशिएटेड इट. तो फिर उसने क्या किया, ये सारा मुझे पहले
क्रिटिकल रिमार्क देने के बाद उन्होंने मेरा जो वो बुक था, जो मैंने लिखा था, जो पेपर मैंने लिया था, जो रिसर्च पेपर मैंने सबमिट किया था, उसको पब्लिश कराया। तो मुझे लगा कि उन्होंने उसको बहुत पसंद किया और वो मेरे लिए अप्रिसिएशन थी कि ये मेरा स्टाइल ऑफ राइटिंग होगा। ये उस क्वेश्चन के आंसर में अम्बटो दे रहे हैं, जब उन्होंने कहा था कि आपका बड़ा वो है ना, वो नॉन फॉर्मल वो क्या कहते हैं उसको, बहुत ही इनफॉर्मल अप्रोच है राइटिंग में। तो उसमें कहते हैं कि हाउ आई गॉट एक्चुअली इंस्पायर्ड, कि जब मेरे अपने प्रोफेसर ने मुझे डॉक्टरेट का जो मैंने डिसर्टेशन दिया था, उसको सबमिट किया था, उस पर जो कमेंट्स आए थे, फिर उसको पब्लिश किया गया था, तो मैं वहीं पे इंस्पायर हो गया कि अगर मैं इस तरह नैरेटिव स्टाइल में लिखूं, अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस को यूज़ करते, जो मैंने सच किया है इस काम में, वो सारा लिख दूं, तो ये लोगों को बड़ा पसंद आता है और मेरे सर को भी पसंद आया था। और दैट वे फ्रॉम दैट डे आई स्टार्टेड राइटिंग इनफॉर्मली, राइट। तो ये इन्होंने रिस्पॉन्ड किया था। फिर वो ऐड करते हैं अम्बर्टो एको, at that point, at the age of 22, I understood scholarly books should be written in the way I had done. तो 22 साल की मेरी उम्र थी, तब मुझे पता चला कि डॉक्टरेट का वो पेपर सबमिट करने के बाद कि अगर स्कॉलरली बुक्स लिखनी है तो वो इसी तरीके से लिखनी चाहिए। बड़ा नैरेटिव होना चाहिए, बड़ा फ्रेंडली होना चाहिए, बड़ा इनफॉर्मल स्टाइल उसमें अडॉप्ट करना चाहिए। बाय टेलिंग द स्टोरी ऑफ द रिसर्च, जैसे मैंने अभी रिसर्च की स्टोरी बोली, तो इसी तरह से सारी बुक्स इंसान को जो भी लिखना चाहिए सुपाजी इथे पढ़ लिखूँ। This is why my essays always leave a narrative aspect, and this is why probably I started writing narratives, novels so late at the age of 50 more or less. तो यही है वजह कि जो मैंने नैरेटिव्स, जो मैंने नॉवेल्स लिखनी शुरू की, उनमें मैंने बिल्कुल इनफॉर्मल अप्रोच अडॉप्ट किया। और ये भी मैं बताता चलूँ कि मेरी उम्र 50 साल से ऊपर थी। Yes, after 50 years of my age, I started writing novels. ठीक है ना। आई रिमेंबर दैट माई डियर फ्रेंड, मेरे एक दोस्त थी, अम्बर्टो एको एक्सटेंड ये फ्लैग कर रहे हैं, यहाँ पे ब्रिज कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं और अपनी उस बात को आगे ले रहे हैं, यानी कि ही इज़ हैविंग कंप्लीट कंट्रोल ओवर द इंटरव्यूअर। तो एक्सटेंड करते जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि आई रिमेंबर दैट माई डियर फ्रेंड रोलैंड बार्थ्स वाज ऑलवेज फ्रस्ट्रेटेड दैट ही वाज एन एसेइस्ट एंड नॉट ए नॉवेलिस्ट। तो अपने दोस्त की रोलैंड बार्थ्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर। अम्बर्टो कहते हैं कि उनको बड़ा फ्रस्ट्रेशन था कि वो सिर्फ एक नॉवेलिस्ट ही है, एक एसेइस्ट ही है वो, लेकिन वो नॉवेलिस्ट नहीं बन सके। उनको बड़ा इस पर दुख था। He wanted to do creative writing one day or another, but he died before he could do so. तो अम्बर्टो कहते हैं कि उन्होंने बहुत कोशिश की थी कि वो भी मेरी तरह क्रिएटिव राइटिंग करें कभी न कहीं ज़िंदगी में, लेकिन नहीं कर पाए, कोई नावल नहीं लिख पाए और इस दुनिया से चल बसे। आई नेवर फेल्ट दिस काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन। हाँ, मुझे कभी ऐसी फ्रस्ट्रेशन नहीं मिली। बड़े मज़े से जब भी चाहा कुछ लिखना तो समझ नहीं आया, बड़े मज़े से लिख डाला। आई रोट वट एवर आई लाइक्ड। आई स्टार्टेड राइटिंग नॉवेल्स बाय एक्सीडेंट। हाँ, ये मैं बताता चलूँ, नॉवेल्स मेरा कभी ऐसे शौक नहीं था, प्लान नहीं था कि मैं नॉवेल्स लिखूं, एक ज़बरदस्त कोई नॉवल लिखूं, ऐसा नहीं था। इट हैपेंड बाय एन एक्सीडेंट, यानी कि हादसाती तौर कभी पेन उठाया और ये नॉवल हो गई। आई हैड नथिंग टू डू वन डे एंड आई स्टार्टेड नॉवेल्स probably satisfied my taste for narration। तो एक दिन मेरा कोई काम नहीं, वैसे कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं था, तो उस दिन मैंने पेन उठाया, मैंने लिखना शुरू किया, तो मैंने नॉवल लिख दिया। तो उस दिन मुझे लगा कि वो जो मेरा नैरेटिव एक क्यूरियोसिटी है कि मैं आई शुड राइट सम नैरेटिव पीसेस, तो उसने वो शौक, दैट क्यूरियोसिटी, दैट डिज़ायर, वो मेरी कंप्लीट हो गई उस दिन जब मैंने वो नैरेटिव उस दिन पहले से स्टार्ट किया। तो ये थी कहानी कि हाउ आई राइट एंड व्हाट इज़ माय स्टाइल ऑफ राइटिंग। उस क्वेश्चन के आंसर में इतना लंबा आंसर फ्लैग करके, ब्रिज करके, है ना, उसको आगे लेकर और ब्लॉक बड़ी खूबसूरती से करके, तो ही एक्सप्लेन्ड इट एट लेंथ कि व्हाट इज़ हिज स्टाइल ऑफ राइटिंग, है ना। एंड देन मुकुंद आस्क्ड अस अनदर क्वेश्चन, टॉकिंग अबाउट novels, from being a famous academic, you went on to becoming spectacularly famous after the publication of The Name of the Rose. You have written 5 novels against many more scholarly works of non-fiction, at least more than 20 of them. चलिए अब मैं आपकी नॉवेल्स पे बात करता हूँ। मुझे लगता है कि अब बड़ी मशहूर हो गई जब आपने द नेम ऑफ द रोज लिखी, और शायद आपने 5 नॉवेल्स, You have written 5 novels against many more scholarly, जबकि आपने बहुत सारा
स्कॉलरली जो आपके आर्टिकल्स हैं, पीसेस हैं, मटेरियल्स हैं, ये इतना सारा हमने लिखा। नॉन फिक्शन पे आपने बहुत कुछ लिखा है, लेकिन 5 से ज़्यादा नॉवेल्स नहीं लिखी होगी। तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट 20 से ज़्यादा पेपर्स आपने नॉन फिक्शन पे लिखे होंगे, या स्कॉलरली कुछ वर्क्स आपने लिखी होंगी, 20 से ज़्यादा, है ना। नॉवेल्स बहुत कम लिखी है, तो 20 से ज़्यादा। उम्बर्टो एको ओवर 40 से ज़्यादा मैंने एकेडमिक वर्क्स पे काम किया है, नॉन फिक्शन लिखा है मैंने। 40 से ज़्यादा डिफरेंट आर्टिकल्स, पेपर्स, वट एवर इट इज आर्टिकल्स, ये मैंने लिखे हैं। मुकुंद ओवर 40 से ज़्यादा। Among them a seminal piece of work on semiotics। आपको पता है बहुत ही इन्फ्लुएंशियल वर्क उसमें उन 40 पीसेस से ऊपर मैंने लिखे, और दैट इज ऑन सेमियोटिक्स। बात समझ आ रही है? सो बट आस्क मोस्ट पीपल अबाउट अम्बर्टो एको। सॉरी, इट इज मुकुंद सेइंग कि आपने 40 से ऊपर, हाँ 40 से ऊपर, और उसमें भी आपने एक सेमिनल वर्क, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम जो आपने किया, दैट्स योर कंट्रीब्यूशन ऑन सेमियोटिक्स, द स्टडी ऑफ लैंग्वेज, जो मैंने बोला था आपको, है ना। तो स्टडी ऑफ साइंस पे आपने काम किया है, लेकिन फिर भी मशहूर हुए ओनली, ओह पीपल कॉल यू ही इज द नॉवेलिस्ट। जब भी अम्बर्टो एको की बात करेंगे तो आपको ही इज द नॉवेलिस्ट वगैरह इसी से मशहूर है आप। डज दैट बॉदर यू? आप परेशान तो नहीं होते हो? ऐसा क्यों है कि इतना सेमिनल वर्क करके सेमियोटिक्स पे, इतना एकेडमिक एरिया में आपने इतना नॉन फिक्शन पे इतना सारा लिखा, लेकिन नॉवेलिस्ट आप मशहूर हो गए? क्या आप इससे थोड़ा सा परेशान तो नहीं हो रहे हो? Umberto Eco. Yes, because I consider myself a university professor who writes novels on Sundays. हाँ, मुझे ये चीज़ परेशान करती है, और believe me, मैं novels on Sundays, in other words on free time, जब कभी लेजर मिलता है तो उसमें मैं novels लिखता हूँ। अदरवाइज ये मेरा प्राइम जो है फोकस या मेरा पर्पस नहीं है लाइफ में। इट्स नॉट ए जोक, आई पार्टिसिपेट इन एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेज एंड नॉट मीटिंग्स ऑफ पेन क्लब्स एंड राइटर्स। और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, लोग समझते नहीं है क्यों, पता नहीं। मैं तो कभी भी, जब भी मैं पार्टिसिपेट करता हूं तो पार्टिसिपेट करता हूं एकेडमिक कॉन्फ्रेंस में। मैंने कभी राइटर्स की कॉन्फ्रेंस में हिस्सा नहीं लिया। मैंने कभी पेन क्लब्स या राइटर्स जितने भी उन्होंने कुछ ऑर्गेनाइज किए मीटिंग्स वगैरह, तो आई नेवर वेंट टू दैट प्लेस। आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ विद द एकेडमिक कम्युनिटी। तो मैं अपने आप को एकेडमिक कम्युनिटी के साथ ही आइडेंटिफाई करता हूँ, एज प्रोफेसर ही लव करता हूँ कि मुझे लोग जाने। बट ओके, if they have read only the novels, तो मैं क्या करूँ अगर लोगों ने मेरी सिर्फ नॉवेल्स को ही पढ़ा है। आई नो दैट बाई राइटिंग नॉवेल्स आई रीच अ लार्ज ऑडियंस। मुझे पता है नॉवेल्स बहुत सारे लोग पढ़ते हैं मेरी नॉवेल्स को, और वो सब लोगों तक पहुँचती हैं। I can't expect to have 1 million readers with stuff on semiotics। ये सीधी सी बात है कि 1 million रीडरशिप मेरी कहाँ होती अगर मैंने सिर्फ सेमियोटिक्स पे बात की होती। कौन पढ़ता सेमियोटिक्स को? उसमें तो बड़ा सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल नॉलेजेबल ही होंगे। नॉवेल्स तो सब तक पहुँचते हैं। मुकुंद, मुकुंद अगला क्वेश्चन, which brings me to my next question. The Name of the Rose is a very serious novel. It's a detective yarn at one level, but it also delves into metaphysics, theology, and medieval history. Yet it enjoyed a huge mass audience. Were you puzzled at all by this? आपकी जो ये नॉवल है द नेम ऑफ द रोज, इसमें आपने टच किया मसलन मेटाफिजिक्स को, इसमें लाया मेडिवल हिस्ट्री को लाया, थियोलॉजी को लाया, बहुत सारे बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स, मगर बहुत मशहूर हुए आप इस नॉवल को पब्लिश करने के बाद। आप कभी हैरान तो नहीं हुए? अम्बर्टो, नो, जर्नलिस्ट्स एंड पब्लिशर्स, वही जर्नलिस्ट पब्लिशर्स, ये तो हैरान हो गए, मैं नहीं हो गया। And sometimes publishers, and this is because journalists and publishers believe that people like trash and don't like difficult reading experience। क्योंकि जर्नलिस्ट के पता नहीं दिमाग में होता है, पब्लिशर्स भी यही सोचते हैं कि लोगों को ट्रैश पढ़ने की आदत है, कहाँ पढ़ेंगे इतना हाई मैग्नीट्यूड जिसको में हो, मेटाफिजिक्स की बात हो, मेडिवल हिस्ट्री की बात हो, कहाँ पढ़ेंगे लोग। ये आप कुछ जर्नलिस्ट के दिमाग में ऐसा नहीं होता है। आप देखिए ना, आपके सामने एग्जाम्पल है। सपोज कंसिडर देयर आर 6 बिलियन पीपल ऑन दिस प्लैनेट। जब किताब लिखा गया था 6 बिलियन,
मे बी टुडे इट विल बी 7 बिलियन पीपल ऑन दिस प्लैनेट। तो ये कहते हैं भट्टो, द नेम ऑफ द रोज सोल्ड बिटवीन 10 and 15 मिलियन कॉपीज। मेरे इस नॉवल की 10 से 15 मिलियन कॉपीज खरीदी गई, लोगों ने खरीदी। I reached only a small, still इतना करने के बाद I reached a small percentage of readers, but it is exactly these kinds of readers who don't want easy experiences. That means कि यही 5 से 10 मिलियन लोग easy experiences इनको नहीं चाहिए, trash इनको नहीं चाहिए, they want some good stuff to read, है ना? और at least don't always want this, या कभी कभी है ना बीच बीच में कुछ अच्छा उनको चाहिए। अगर आप मुझे पूछेंगे फॉर एग्जांपल, मैं भी हर वक्त कहाँ सीरियस सेमियोटिक्स ही नहीं करता हूँ। टेल मी अबाउट माई सेल्फ, मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल एट 9 PM आफ्टर डिनर आई वॉच टेलीविजन। मैं भी टेलीविजन देखता हूँ शाम को ना 9 के बाद, लेकिन डेली नहीं। और आपको पता है वो डू यू लाइक, हाँ एक दो चीज़ें मेरी हैं। आई सी मायामी वाइस और इमरजेंसी रूम्स, ये इंग्लैंड के बहुत मशहूर सीरियल है जो शाम 9 बजे आते हैं। तो इनके बारे में अम्बर्टो एको यहाँ पे ये 2 मशहूर सीरियल्स हैं जो वो देखते हैं। आई एन्जॉय इट एंड आई नीड इट बट नॉट एट ऑल डे। लेकिन मैं ये रेगुलर ये नहीं कह सकता कि बस मुझे कंटिन्यू मैं यही देखता हूँ, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो वो लेकिन देखता हूँ, इंजॉय करता हूँ, मैं भी एंटरटेनमेंट वगैरह का शौक, तो इसी तरह लोग भी करते हैं। मुकुट, could the huge success of the novel have anything to do with the fact that it dealt with a period of medieval history? एको साहब आप मुझे बताएं, क्या आपने जो मेडिवल हिस्ट्री को इसमें टच किया, क्या ये इसीलिए मशहूर हो गई है आपकी नॉवल कि आपने मेडिवल हिस्ट्री को यहां पे बहुत ज्यादा फोकस किया, इसीलिए लोगों ने इसको पसंद किया? अम्बर्टो एको, that's possible, but let me tell you another story। क्योंकि मैं चाइनीज वाइज मैन की तरह स्टोरीज ही सुनाता जा रहा हूं, तो मैं आपको एक और स्टोरी सुना देता हूं। अम्बर्टो एको यहां पे बोलते हैं, आपको पता ही क्या हुआ? My American publisher said while she loved my books, she didn't expect to sell more than 3,000 copies in a country when nobody has seen Cathedral or studies Latin. So I was given an advance of ₹4 3,000 copies, but in the end it sold 2 or 3 million in the US. आपको पता ही मेरी जो पब्लिशर थी उन्होंने मुझे 3,000 कॉपीज के लिए ही सिर्फ पैसे दिए थे, बोला था कि बस 3,000 बिकेंगी। आपको पता है यहाँ पे चूंकि आपने जो स्टफ इसमें लिया है कैथेड्रल यहाँ पे नहीं है, और आपको पता है वो जो लैटिन यहाँ पे लोग पढ़ते नहीं, तो कैसे होगा, लोग नहीं पढ़ेंगे। 3,000 कॉपियाँ बिकेंगी तो उसके लिए मैं आपको एडवांस देती हूँ। पता है फिर अमेरिका में मैंने कितनी मेरी नॉवेल्स बिकी? इट वॉज 2 or 3 मिलियन कॉपीज मैंने वहां पे फिर सोल्ड की थी। A lot of books have been written about the medieval past for before mine. मेरी इस द नेम ऑफ द रोज से पहले बहुत सारी किताबों को medieval पीरियड पे लिखी गई है। I think the success of the book is a mystery. इस पे तो medieval पे मैं नहीं जाता, हाँ एक राज है, समथिंग मिस्ट्री है इसमें कि द नेम ऑफ द रोज क्यों सक्सेसफुल हुई। इट्स ओनली अ मिस्ट्री, आई कॉन्ट से एनीबडी, नोबडी कैन प्रेडिक्ट इट, कुछ नहीं कह सकते क्यों कामयाब हुई। आई थिंक इफ आई हैड रिटन द नेम ऑफ द रोज 10 years अर्लियर और 10 years लेटर इट वुड नॉट हैव बीन द सेम। अगर मैं सच बता रहा हूं, अगर उस टाइम से पहले 10 साल या उस टाइम के बाद 10 साल मैंने द नेम ऑफ द रोज लिखी होती, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि इतनी सक्सेस मेरी होती, ये बुक इतनी ज्यादा मैं बेचता। वाई इट वर्क एट द टाइम इज अ मिस्ट्री। फिर बताता हूं, मेरी ये कॉपी इतना ज्यादा, ये मेरा द नेम ऑफ द रोज क्यों बिका उस टाइम पे, मिस्ट्री है। लोग क्यों पसंद करते हैं नहीं मालूम। सो हियर द इंटरव्यू कंक्लूड्स। तो आपने देखा कि मुख्तलिफ क्वेश्चंस, अगर देखें तो ये इंटरव्यू जो सेंट्रल पॉइंट जो इस का रहा वो यही रहा कि द नेम ऑफ द रोज की सक्सेस अम्बर्टो एको इतने जबरदस्त सेमियोटिक्स के प्रोफेसर एज ए नॉवलिस्ट क्यों फेमस हो गए, वो नावल लिखने में उसका क्या राज था सक्सेस का, वो कैसे लिखते हैं, है ना। तो अमेरिका में इतनी सारी बुक्स कॉपीज क्यों सोल्ड हो गई,
कामयाबी का राज क्या था, ये सारी चीज़ें इस इंटरव्यू में डिस्कस हुई एंड बड़े खूबसूरत अंदाज में अम्बर्टो एको ने कंट्रोल किया पूरी सिचुएशन पे। और मैंने जो बोला था आपको टेक्निक्स, फ्लैगिंग की, ब्लॉकिंग की, ब्रिजिंग की और हुकिंग की, इन द बिगिनिंग हुक किया और सारा कुछ अपने कंट्रोल में लिया एंड केप्ट ऑन स्पीकिंग। सो दिस इज हाउ ऑन इंटरव्यूज वी शुड हैव कंट्रोल ऑन थिंग्स। अगर आप थीम की बात करें तो मैं यही इसको बोलूंगा, दिस ब्यूटीफुल इंटरव्यू बिटवीन मुकुल पद्मनाभन एंड अम्बर्टो एको कन्वेज अ ब्यूटीफुल मैसेज दैट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ वी मस्ट यूज द इंटरस्टाइसेस फॉर प्रोडक्टिव वर्क्स। तो ये इस खाली वक्त जो हमारी जिंदगी में है ना, थीम इस मुझे लगता है मैंने जो आपके लिए खासकर 12th क्लास के बच्चों के लिए जो मैंने थीम लिया वो यही है कि अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो जितना भी आपके पास फ्री टाइम है ना, आजकल का ज़माना घर में हो ना आप लोग, इतना ज़बरदस्त मौका है आपको इम्प्रोवाइज, एलिवेट, एडवांस होने का पढ़ने में, है ना। आप अपने टाइम को डिवाइड कीजिए, बहुत सेलेक्टिव रहिए, खेलिए भी घर के अंदर ही, बट प्रॉपर एसओपीज का ख्याल करते हुए आप अच्छे से पढ़ भी सकते हो और इंजॉय भी लाइफ कर सकते हो। एंड आई थिंक दिस इज द राइट टाइम एंड द बेस्ट टाइम। आपके पास इंटरनेट के थ्रू एक्सेस बहुत सारे मटेरियल्स के लिए है। इफ यू go and do the judicious use of internet, I think you'll be successful in your life as was Umberto Eco. So this interview concludes here and I hope that you'll be able to respond to my questions, right? So before we go to assessment, मैंने थीम की बात थोड़ी सी की, अब अगर असेसमेंट पे बात करें हम तो 2-3 क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे पहले, ठीक है। तो क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाउ डज, आपको मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, अब सबके सब ब्रिंग योर कॉपीज, या हाँ अपना पेन निकालिए, बहुत अच्छे, शाबाश। तो ये क्वेश्चन का रेस्पॉन्ड करने की कोशिश कीजिए। सपोज, हाउ डज एको फाइंड द टाइम टू राइट सो मच। ये एको कहाँ से वक्त लाते हैं इतना सारा लिखने के लिए। चलिए, गुड, शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत अच्छी कोशिश, कम ऑन, ग्रेट, वाओ। अच्छा, मैं इधर से बोलता हूं, आपने क्या लिखा बोलूं? मुझे लगता है यस आपने लिखा होगा, चूंकि वो एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, ही इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर who attends academic conferences all weeks. He finds so much time to write in the empty spaces that we all have in our lives, just like the structure of atoms and universe. He terms these empty spaces as interstices, है ना? If he is waiting for someone coming to his house via the elevator, he would use that time to write an essay rather than sit idle. बहुत इंटरेस्टिंग बात है ना? Therefore he considers himself a scholar who writes novels on Sundays. यानी कि बड़े फुर्सत में सिर्फ नॉवेल्स लिखता हूँ, बाकी तो मैं एक स्कॉलर ही हूँ। तो आई होप कि यही रेस्पॉन्स आपका भी होगा। एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, what was distinctive about Eco's academic writing style? इसका बड़ा डिटेल्ड रेस्पॉन्स उन्होंने एक क्वेश्चन में दिया था मुकुल को। तो ये क्वेश्चन है कि एक उनका यूनिक स्टाइल ऑफ राइटिंग है, उस पर आपको बात करनी पड़ेगी कि क्या वो राइटिंग स्टाइल था उनका। फॉर एग्जाम्पल, हाँ आप कोशिश कीजिए, मैंने बोला था यस, गुड, वेरी गुड। आप कॉपी पे जॉट डाउन कीजिए, नाइस, बहुत अच्छे, अच्छा कर रहे हैं आप, गुड, नाइस। जरा चेक कीजिए, मुझे लगता है आपने इस तरह के कुछ वर्ड्स लिखे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने पहले वहाँ पे कॉपी किया था, उन्होंने बोला था पहले कि जो नॉर्मल स्कॉलर्स होते हैं, जो रिसर्च स्कॉलर होते हैं, वो हाइपोथेसिस पे जाते हैं, रेक्टिफाई करते हैं, कंक्लूजन्स देते हैं, फिर सबमिट करते हैं। लेकिन अम्बर्टो का क्या था? हिज जर्नी इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। वो कोट करते हैं अपनी ट्रायल्स को, अपनी एरर्स को, अपने कंक्लूजन्स को लिखते हैं और अपनी पर्सनल एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं। ये उनका डिस्टिंक्टिव और यूनिक राइटिंग स्टाइल है एज कंपेयर टू अदर्स। एक और क्वेश्चन पूछता हूं, ट्राई कीजिए रेस्पॉन्ड करने की। डिड अम्बर्टो एको कंसिडर हिमसेल्फ अ नॉवेलिस्ट फर्स्ट और एन एकेडमिक स्कॉलर? अम्बर्टो एको ने अपने आप को क्या कंसिडर किया? क्या उसने अपने आप को एक स्कॉलर कंसिडर किया कि अपने आप को एक नॉवेलिस्ट? ये बताना है आपको। गुड, हाँ,
क्या कंसिडर किया था? ट्राई कीजिए, वेरी गुड, शाबाश, नाइस, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। हाँ, ब्रीफ आप 2-4 वर्ड्स लिख सकते हो। दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छे। तो अंबटो एको, ये जरा चेक कीजिए आप, यही वर्ड्स आपने लिखे। अंबटो एको आइडेंटिफाइज हिमसेल्फ विद द एकेडमिक कम्युनिटी। According to him, he is a university professor who attends academic conferences all week and writes novels on Sundays. That means कि novel writing पे उसका इतना ज़्यादा interest. No doubt कि he became successful and famous because of his novel, but he is not interested. He is only interested as an academic. Okay, fine. What is the reason for the huge success of the novel, The Name of the Rose? ये आपके लिए last question है, बताइए मुझे, ये कैसे इतनी successful हुई थी ये नॉवल? हाँ, गुड, दैट्स नाइस, फाइन। चलिए, आई होप कि आपने ये 2-4 वर्ड्स लिखे होंगे मेरे ख्याल से, कि द नेम ऑफ द रोज इज अ हार्ड राइट, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि मेटाफिजिक्स आपको पता है उसमें है ना। तो उसमें थियोलॉजी का को लाया उन्होंने, उसमें उन्होंने मेडिइवल हिस्ट्री को लाया। तो उसने टारगेट किया कि ऐसे रीडरशिप को कि वो हार्ड रीडिंग उनका इंटरेस्ट होना चाहिए, कि बड़ी बड़ी और जो डीप कॉन्सेप्ट्स हैं उनको वो पढ़ने चाहिए। सो दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू अम्बर्टो द नॉवल दैट ही हैड रिटन, यो कहते हैं कि एक कंप्लीट मिस्ट्री है। मैं नहीं कह सकता कि किस चीज पे लोगों ने इसको पसंद किया, व्हाई दे लाइक्ड इट, बट इट बिकेम सक्सेसफुल। दैट इज ट्रूथ बिफोर यू एंड मी एंड एवरीबडी। मगर वो ये भी कहते हैं कि अगर मैंने, इफ आई हैड published this novel before 10 years or after 10 years, इसकी इतनी सक्सेस नहीं होती। सक्सेस क्या है वो इसको सीधा बोलते हैं, ये सीक्रेट ऑफ, ये एक मिस्ट्री है, मैं कुछ नहीं बता सकता। ग्रेट, हाँ, ये था हमारा कलेक्टिव रेस्पॉन्स। अब ये एक क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए, फाइन, ये आप घर में अभी आप नोट डाउन कीजिए। और मैंने, आई होप कि पहले क्लास में मैंने जो ईमेल आईडी आपके साथ शेयर की थी, आई एम डैम श्योर कि आप वो ईमेल आईडी अपने पास रखेंगे। अगर नहीं तो मैं फिर एक बार ऐसे ही बोल रहा हूं, sheikgulzar1970@gmail.com। नाइस, इसको रखिए आप। और ये मेरा जो असाइनमेंट का एक क्वेश्चन मान लीजिए ये दे रहा हूं, तो मुझे रेस्पॉन्स चाहिए मेल के थ्रू, क्या आपने इसका रेस्पॉन्स दिया। आई विल बी हैप्पी, बहुत खुश हो जाऊंगा मैं अगर आप मेल के थ्रू मुझे लिखेंगे कि सर इसके रेस्पॉन्सेज ये थे, या अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम, कंसर्न आ गया कि इसका हमें जवाब नहीं पता या यहाँ पे हमें हेल्प चाहिए, फील फ्री टू रीच मी थ्रू दैट मेल। और इतना ही नहीं, टेक्स्ट में और सारी चैप्टर्स हैं, और सारी पोएम्स हैं, वट एवर यू लाइक, आई एम देयर टू हेल्प, है ना। तो बिल्कुल जब भी चाहें आप मुझसे आप कांटेक्ट करके आपको हेल्प मिल सकती है। तो ये फॉर एग्जांपल आप पेज नंबर पे जाइए, फॉर एग्जांपल आप, हाँ यस, ये पेज नंबर आपका है 71 और 70, इनके दरमियान 70 और 71 में ये 3 लाइन्स हैं, ठीक है ना। आप ओपन कीजिए बुक, हाँ लाइन मारिए, अंडरलाइन कीजिए, बिल्कुल। डिड यू नो से लेकर व्हाट विल हैपन इफ यू एलिमिनेट द स्पेसेस फ्रॉम द यूनिवर्स, एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेसेस इन ऑल द एटम्स, द यूनिवर्स विल बिकम एज बिग एज माई फिस्ट। हाँ, ये आप 2.5-3 लाइन्स रखिए, ओके फाइन। नाउ ये 4 छोटे छोटे, एक वर्ड हर एक क्वेश्चन का आंसर है, जस्ट 1 वर्ड, ट्राई कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, बाय एलिमिनेटिंग empty spaces in atoms, the universe will be as big as an atom. True or false? आपको सिर्फ इतना बोलना है, good, रखिए। Number 2, besides the universe, where else does the speaker want to eliminate empty spaces? 1 word का आंसर चाहिए मुझे, good. Find a word from the extract that means to remove. इसी extract से एक word है, उसकी meaning है remove, वो मुझे बताइए। Great. Last one. If the empty spaces in the universe and in atoms were measured, then the universe would be as dash as the writer's fist. इसमें मुझे चाहिए एक एडजेक्टिव रेस्पॉन्स, है ना। ये आप घर में कीजिए। तो इस तरह ये हमारा सेकंड पार्ट, यहाँ पे वी हैव रीच्ड टू ए कंक्लूजन। आपको असाइनमेंट भी मिला है, पहले वाले लेसन में भी, इसमें भी, ठीक है ना। अब बड़े आराम से
वापस जाइए, टेक्स्ट बुक को लीजिए, मेरी जो स्कैफोल्डिंग दी मैंने उसको देखिए, मैंने जो क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए उनको देखिए, जो लास्ट पे क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक में लास्ट पे कुछ क्वेश्चंस दिए, बिल्कुल इनको मैंने तकरीबन थ्रू माय दिस एक्सप्लेनेशन आई हैव एक्सप्लेन्ड ईच एंड एवरीथिंग टू यू। अब आप हेल्प लीजिए टेक्स्ट बुक की और इन क्वेश्चंस को, जो सारे क्वेश्चंस लास्ट में दिए हुए हैं, इनका रेस्पॉन्ड कीजिए। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम आती है तो मैंने ईमेल आईडी sheikgulzar1970@gmail.com उसको दिया है, आपने शेयर किया आपके साथ, तो उस पर मुझसे आप मिल सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आराम से रहिए, घर में रहिए, SOPs को मेंटेन कीजिए, किसी को तंग घर में मत कीजिए। खेलने का टाइम है, अंदर ही कोशिश कीजिए कोई इंडोर गेम खेलने की। डोंट गो आउटसाइड, और अपने आप को भी परेशान मत कीजिए, अपने पेरेंट्स को भी, अपने टीचर्स को भी, है ना। आजकल के इस पैंडेमिक में बेटर है कि घर में रहें, अच्छे अच्छे मज़ेदार लेसन्स एंजॉय करें। मैं आपको फिर इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम आई एम कमिंग बैक टू यू।